and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where I hope in the next few minutes I make your life a little bit more simpler with the chapter called as Analysis of Financial Statements, specifically speaking in that रेशियो एनालिसिस. ओके, आज का जो रेशियो है वो तो करना ही करना है, डेफिनेटली है, पर मुझको आपको हमेशा की तरह याद दिलाना है that you can get connected to us with the Facebook page above or the Instagram ID or the Twitter handle. I'll do my best, पूरी कोशिश करूँगा अभी नहीं तो कुछ दिनों में कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए ज़रूर मिल जाए, या तो जनरल कनेक्शन में रहेगा या तो हमारे चैप्टर्स के कनेक्शन में होगा. The above Telegram channel, which is so important that you get connected to and you also tell your friends to get connected to, is used for different purposes. अलग अलग वजहों के लिए वो Telegram channel जो ऊपर दिया गया है उसका इस्तेमाल किया जाता है. आपको अगर हमें किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पास आउट करना है, ओके, कि what is going to happen tomorrow, भविष्यवाणी नहीं करनी है हम लोग को क्योंकि वो हमको अभी तक पता नहीं है, बट लेक्चर्स के बारे में, विच लेक्चर्स आर गोइंग टू बी अपलोडेड टुमारो, इट इज़ नोटिफाइड, अपडेटेड इन द टेलीग्राम चैनल अबाउट द PDF of the question and answer at the end of the entire chapter. Summarized is going to be put up on that particular channel so that you can download it and you can always view it for future reference purposes. So Telegram channel, very important, get connected to it, and whatever are the benefits that we provide on that Telegram channel can be obtained by you. If you have missed out the previous lecture, my request, there is an I button being given above, click it, go watch and then come back to this particular lecture, otherwise link आपका छूट जाएगा. And lastly, अगर टेक्स्ट बुक आपको खरीदना है, which is actually very important क्योंकि there is a big difference in डिजिटल टेक्स्ट बुक एंड फिजिकल टेक्स्ट बुक. फिजिकल टेक्स्ट बुक में मार्किंग्स थोड़े कन्वीनियंट हो जाते हैं, छोटे मोटे नोट्स लिखने कन्वीनियंट हो जाते हैं. इफ़ यू डू इंटेंड टू परचेस इट, द परचेस लिंक ऑफ दिस टेक्स्ट बुक जहाँ से ये सॉल्व किया जाएगा इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, तो किस बात की देरी है, शुरू करते हैं. हियर गोस. We have been doing analysis of financial statements, and financial statements may for Maharashtra board level, okay, the chapter has been categorized into three parts. The first part being common size comparative, which has been cleared. The second part being ratio analysis, जो अभी चल रहा है, okay, and there are multiple ratios in that. वेरी क्विकली, सर रेशियोज मतलब क्या होते हैं? देखो, टेक्निकली फॉर्मूलाज होते हैं, ओके, बाकी स्पेसिफिक अगर आपको मीनिंग जानना है तो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेशियो का मतलब क्या होता है. दो नंबर लेने हैं, ओके, नॉट कोई भी दो नंबर, बट येस दो नंबर और उनके बीच में जो रिश्ता होता है, ओके. अब वो रिश्ता जो होता है वो आप एक्सप्रेस अलग अलग फॉर्म में कर सकते हो. कभी कभी प्योर रेशियो जो मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में किया है, कभी कभी परसेंटेज रेशियो जो आज होने वाला है, और कभी कभी टाइम्स रेशियो, देखते हैं वो कब आएगा. मीनिंग दैट इज हाउ यू एक्सप्रेस रेशियो का जब आंसर आता है. इट कैन बी अ प्योर रेशियो, इट कैन बी अ परसेंटेज रेशियो, और इट कैन बी अ टाइम्स रेशियो. 2 times, 3 times, 2.5 times, 4.6 times, something like that. Percentage is 20%, 30%, 40%, and pure ratio is 3:1, 4:5, जो आपने already when you do partnership final accounts, तो partnership final accounts में within the partners वो काफ़ी बार काम आता है. Okay, so today जो हमारा ध्यान है is not on this. I have covered up already current ratio, how do you solve it, quick ratio, how do you solve it. These two were called as balance sheet ratios. ऐसा क्यों? क्योंकि right above if you see balance sheet में से आपको current asset, current liability, quick asset, quick liability, you will get it. वो numbers वहाँ से मिलेंगे, इसके लिए वो balance sheet ratio बन गया. Today we start with income statement ratios. Very quickly to remind you, sir income statement का मतलब क्या होता है? This, जहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हो? वर्टिकल फॉर्मेट में. आई रिपीट माई सेल्फ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ दिस इज नॉट अंडरस्टूड बाई यू, इफ समबडी वुड आस्क यू कि आपको पता है
नेट सेल्स क्या होता है, एंड यू आर लाइक नहीं पता, वेल देन रेशो आप नहीं कर सकते. सेल्स लेस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? फैक्ट्री में जो खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं. सो उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, फैक्ट्री के खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है. इफ समबडी वुड आस्क यू, इंटरव्यू, आपके मुंह में माइक ठूस दिया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? यू शुड नो नेट सेल्स subtract cost of goods sold gives you gross profit. okay, उसके बाद का मैं आज रेशो नहीं कर रहा. so today my only one ratio is going to be gross profit ratio, and to very quickly show you what do I mean by gross profit ratio, आप देख सकते हो ऊपर. okay, and this is what I mean. Gross profit, how do you find it? Upon net sales multiply by 100. जितनी बार आपको multiply by 100 दिखेगा, काफी बार है, many times. okay, please understand it is a percentage ratio. so only ऊपर balance sheet and this last में, उसके बाद में every other ratio is a percentage ratio. multiply by 100 means that formula is trying to tell you this is going to be a percentage ratio. Today only one. नाम के वास्ते I don't want to solve everything together because to be very frank I am not comfortable if I take up a 2 hours lecture, teach you all the ratios, but then ना आपको कुछ समझा नहीं क्या मतलब होता है ये लेक्चर का या कोई भी लेक्चर का या कोई भी टीचर का. The main purpose is the teaching should be such कि teaching तो हो गया बट उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गया, एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ योर जॉब. ओके, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट माई टीचिंग इज़ इन सच अ मैनर दैट योर अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑफ अ हायर लेवल. सो क्या करने वाले हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे. मीनिंग लास्ट टाइम मैंने कहा था ना आपको, वट एवर यू सॉल्व उसके इंग्रेडिएंट्स होने बहुत ज़रूरी है. ओके, कुछ भी अगर आप किचन में जाके एक दिन डिसाइड करते हो मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा. ओके, I have a daughter, not very big, okay, 6 years old. तो पिछले कुछ दिनों से उन्हें फलूदा बनाने का शौक चढ़ा है. नाउ अगर कोई भी डिसेंट फलूदा है तो उसके अंदर एटलीस्ट देयर आर 3 or 4 आइटम्स जो जाते हैं. ओके, मिल्क बीइंग वन ऑफ द मेन कंटेंट्स. ओके, तो मेरी बेटी 6 साल की, बट इतनी अक्ल है, अगर फलूदा बनाने का है तो इंग्रेडिएंट 1, इंग्रेडिएंट 2, इंग्रेडिएंट 3 अगर वो अवेलेबल नहीं होगा, शील कम टू मी, शील गो टू द मदर एंड शील से ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं, बिकॉज शी नोज क्योंकि बनाने के पहले सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है, क्या अवेलेबल होना चाहिए? फॉर्मूला में देखो, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स मुझे कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली ये जो है ना, क्या ये स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, यहाँ से मिल जाएगा. अगर आप सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करो यू विल गेट नेट सेल्स. अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखो यू विल फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड देन एंड ओनली देन you will find out gross profit, because gross profit is net sales subtract cost of goods sold. Do remember that during the solution, that is this is applicable for all the lectures, especially where I am solving from the Maharashtra government textbook, that the government textbook has a few errors in it. कभी न्यू अमाउंट्स में होते हैं, कभी कभी वो गलतियाँ वर्डिंग्स में होती है. तो हमेशा प्लीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो PDF बनाया जाएगा, अगर कुछ गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई ऑब्वियसली करके बनाया जाएगा. वी विल डू आवर बेस्ट. हाँ, अगर कुछ गलती छूट भी जाती है या हमसे हो जाती है, आप हमेशा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट. ओके, गलती सभी करते हैं, you as a student and we as in the teaching community on the YouTube platform. Okay, गलती करना is not the डरने की चीज़, गलती को सुधारना
दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप अगर गलती करोगे हम वो पिन पॉइंट कर लेंगे, हमसे गलती हो जाएगी, आप पिन पॉइंट कर लेना, टेक्स्ट बुक अगर गलती करता है हम बता देंगे। सो लेट मी गेट स्टार्टेड। आज का मुद्दा ओनली वन, व्हाट, हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एंड अगेन इफ यू वुड आस्क सर, मतलब सर करूँ क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ढूंढकर, मतलब उससे सिर्फ फायदा किसका होता है? वेल, कंपनी को पता चलता है, एनी बिजनेसमैन, ओके, इफ यू रन अ बिजनेस, अगर आपका एक बिजनेस है छोटा बड़ा जो भी हो, वुडंट यू वांट टू नो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है? अगर आपको कोई बोले कि प्रॉफिट आपका था 20,000, देन यू वुड वांट टू नो ये मतलब अच्छा है कि बुरा है? 20,000, 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट था, अच्छा है कि बुरा है? हाँ, उसी तरह जब वो प्रॉफिट को परसेंटेज में ढूंढते हैं, 10% आपका प्रॉफिट था, इज इट गुड और बैड? एंड अगर आपने लास्ट ईयर का परसेंटेज ढूंढा है, करंट ईयर का परसेंटेज ढूंढा है, देन यू कैन कंपेयर। ओके, कैसे कंपेयर करोगे कि लास्ट ईयर में तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था 10%, अभी हो गया है 12%, गुड, अच्छी बात है, क्योंकि 10 से 12 तो हो गया, इंक्रीज तो हो गया। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, कंपैरिजन भी बहुत सिंपल हो जाता है आप ही के बिजनेस का। एंड अमंग टू बिजनेसेस, ओके, इफ यू आर अ स्पेक्टेटर, मतलब एन आउटसाइडर, आपके पास सामने दो कंपनी है, एक है लेट्स से रिलायंस, एक है अडानी, यू वांट टू कंपेयर इनका परफॉर्मेंस कैसे है, तो हो सकता है अगर आपको दोनों कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट पता है, ओके, तो आप बोलोगे इसका तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 15 है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 14 है, तो फर्स्ट कंपनी शुड बी डूइंग बेटर क्योंकि उनका 15% है। हाँ, कंपेयर करने के लिए काम आता है। टुडे वी आर नॉट कंपेयरिंग, वी आर कैलकुलेटिंग हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने से आपको बताया थोड़ा थियोरेटिकली कि उसका मतलब क्या है, यूज किधर आता है। सो फर्स्ट सम टुडे कहाँ पे है, आ गया, calculate. So the information, which question is it? We are kind of avoiding the page number क्योंकि पेज नंबर काफ़ी बार चेंज हो सकता है, बट वी होप कि जो क्वेश्चन नंबर है वो चेंज ना हो। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर बी बिकॉज एडिशन किताब का चेंज हो गया, टेक्स्ट बुक का, हम लोग डिस्क्रिप्शन या तो हम लोग एज अ पिंड कमेंट ओके दे देगी कि द क्वेश्चन नंबर इज लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में चेंज्ड। राइट नाउ कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेल्स दिया है, सी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो व्हाट डू यू हैव टू डू? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखने का। व्हाट इज द फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इन द क्वेश्चन इफ आई हैव ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा काम हो गया, नेट सेल्स हमारा काम हो गया। अगर दोनों नहीं है तो हमारा काम नहीं हो गया, ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो डू वी हैव सेल्स 5,40,000, हमको नेट सेल्स चाहिए। हाँ, तो सेल्स है ना, नहीं होल्ड ऑन, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स। डू यू हैव सेल्स रिटर्न? सी द सेकेंड लाइन, सेल्स रिटर्न, सो यू हैव टू माइनस, तब जाके नेट सेल्स आएगा। ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखते हो? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट नेट परचेज, COGS, क्लोजिंग स्टॉक, COGS। सो इफ यू solve the income statement roughly, you will get two answers: one, net sales; two, gross profit. And then the third answer, because of these two answers, what? Gross profit ratio. Okay, so I repeat, directly with this information you cannot find gross profit ratio because you don't know the gross profit, you don't know the net sales. तो क्या करेंगे? रफ मेरे ऊपर आने वाला है, तो आप कहाँ पे भी कॉपी कर लो, बट डेफिनेटली आपकी नोटबुक में आप कॉपी कर लेना। हाँ, क्या है? सेल्स वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच वॉज दैट? 5,40,000. फ्रॉम दैट सबट्रैक्ट सेल्स रिटर्न. Very important, now I will get net sales 5 lakh. So that is the denominator of the formula. Please keep in mind,
डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला। अब क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी तो चाहिए क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर ऑफ द फॉर्मूला चाहिए, बट वो चुटकी बजा के नहीं आता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, देखो इसमें ना फैक्ट्री के खर्चे आते हैं। ओपनिंग स्टॉक पहले आता है 90,000, उसमें परचेस आपको ऐड करना पड़ता है 3 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक। So I repeat, I didn't go to the question because the question has all of this information. आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल होगा. So when I do opening plus purchase minus closing, you get cost of goods sold. 3,40,000. Is cost of goods sold directly useful? No, because it is not a part of the formula. But cost of goods sold helps me calculate gross profit, which is net profit minus COGS, which is net profit up ऊपर, sorry, net sales आप ऊपर देख सकते हो 5 lakh minus 3,40,000, 1,60,000. I repeat, whatever is above me on my head, above me, ये रफ वर्क है, बट वेरी इंपॉर्टेंट रफ वर्क, क्योंकि गेव मी 2 इंग्रेडिएंट्स, तो ये फलूदा बनने वाला है. ओके, अदरवाइज सोल्यूशन का फलूदा बन जाएगा, दोनों फलूदा अलग था. ओके हाँ, तो अभी मैं ये 1,60,000 अपॉन क्या करूंगा, नेट सेल्स विच इज 5 लाख, किधर वो सोल्यूशन में, गो बैक टू द सोल्यूशन, into 100 क्यूब, because this percentage answer will be in percentage, this ratio answer will be in percentage. क्या करना है, वेल अभी आप कैंसिल करो 0 0 0 0, ओके 5 का टेबल यूज करो, आपको आंसर कितना आएगा आफ्टर योर कैंसिलेशन, पूरी मेहनत करने के बाद में, पूरा पसीना छूटने के बाद में, 32%. ओके, सो क्वाइट सिंपल. द प्रीवियस रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वो प्योर रेशियो था. ओके, 2:1, 4:1, 3.5, 2.8:1. ओके, वो प्योर रेशियो, ये परसेंटेज रेशियो है. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. नेक्स्ट वन, विच इज प्रॉब्लम नंबर 14. अगेन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. करना तो वही है, बट व्हेन आई डू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला हमको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन में इज ग्रॉस प्रॉफिट गिवन, इज नेट सेल्स गिवन. इफ इट इज गिवन, चुटकी बजा के ये हो जाएगा. इफ इट इज नॉट गिवन, तो चुटकी बजा के नहीं होगा. आई हैव टू पुट इन अ लिटिल बिट मोर हार्ड वर्क. ओके, व्हाट डू आई हैव, सेल्स. Okay, this is not net sales, this is called as gross sales, GROSS, gross. Then net purchases, it's a part of COGS. Sales return, वो sales से minus होगा. Closing stock, opening stock, COGS. So just like my first question, okay, in this also थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, gross profit ढूंढना पड़ेगा, net sales ढूंढना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करेंगे. तो चलो कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई. राइट अबाउ मी द रफ वर्क पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. तो आई एम नॉट शोइंग योर फॉर्मूला बिकॉज बेसिकली इट्स नॉट अ फॉर्मूला. अगर आपको इनकम स्टेटमेंट आता है, ऑटोमेटिकली आप लोग ये ग्रॉस प्रॉफिट और COGS और नेट सेल्स ढूंढ सकते हो. द सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन वॉज 2,70,000. The sales return 20,000 and therefore the net sales. The most important thing, okay, ये base है, very important. Gross profit is always calculated in connection with sales. Therefore sales comes as the denominator. कितना? 2,50,000. If somebody would ask me, sir अगर sales return नहीं दिया तो क्या? तो फिर sales और फिर net sales एक ही होगा ना, क्योंकि कुछ माइनस करने के लिए तो है ही नहीं. कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब सर फैक्ट्री का आंसर क्या है, फैक्ट्री में कौन से खर्चे हुए. देखो पहले तो ओपनिंग स्टॉक होता है, कितना, 45,000 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फिर परचेसेस का जो आंसर होता है, नेट परचेस का मतलब क्या होता है, उन्होंने परचेस माइनस परचेस रिटर्न कर लिया, आपको आंसर दे दिया 1,50,000. एंड अगर कोई फैक्ट्री का खर्चा आता है, वेजेस आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, बट ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, वो आप माइनस कर लो 25,000. दिस गिव्स यू बड़े शरीफ रीति से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हाउ मच इज दैट,
1,70,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली इज नॉट यूजफुल. अगर उसको आप नेट सेल से माइनस करो, विच इज अगेन राइट अबाउ मी, वेल यहाँ पे नेट सेल से यू गेट द आंसर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 80,000. क्या करना है, ये मसाले बन गए. ओके, अभी इसको लेकर आप आपका जो पकवान है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उसको बना लो. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000. द नेट सेल्स इज 2,50,000 एंड नथिंग. सॉल्व करो. कैसे? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कैंसिल करो. ओके, जीरोस को कैंसिल कर लो, उसके बाद में 5 का टेबल यूज कर लो, एनी टेबल दैट यू नो, and eventually you will arrive at the answer which coincidentally is the same like the first one. Don't say हाँ सर सब में ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता. परसेंटेज कुछ भी आ सकता है from 1 to 100%. It's a coincidence कि पहला gross profit और second gross profit has come the same. Okay, so now this is how it is one style to find out the gross profit ratio. But अगर जो information question का है अगर वो बदल जाता है then the style to calculate the ratio वो भी बदल जाएगा. Formula will remain the same. Answer will not remain the same. वो percentage कुछ भी आ सकता है. What do I mean by style बदल जाता है? Well, let's see. This is our last one for today. Compute gross profit ratio. Gross profit upon net sales into 100. Compute. From the following information. थोड़ा different information. Sales 5 लाख. Okay. Gross profit ratio 25% on cost. Please look above. Gross profit ratio 25% on cost. Many of you would be, sir, gross profit ratio तो दे दिया, अब ढूंढे क्या? Please note, जो आप कैलकुलेट करते हो, जो क्वेश्चन को चाहिए, it is always not on cost. उधर ऊपर वर्डिंग्स पढ़ो, on cost, जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है. You don't want to be finding that. You have to find on sales. I repeat. So what is this on sales? आपके फॉर्मूला में gross profit is on what? Net sales ना? हाँ. So gross profit should not be on cost. It should be on sales. So यहाँ पे जो दिया है on cost, that's an information. That's not an answer. सर दे दिया 25%. बात खत्म करो सर, लेक्चर बंद करो जाओ. नहीं, ऐसा नहीं, लेक्चर बंद हो जाएगा, आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगी. यू हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड फाइंड आउट ऑन सेल्स. वेल, देखते हैं, बाकी पूरा तो ये खाली था. हाउ डू यू यूज दिस? लेट्स डू. सो देयर विल बी अ डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस बिकॉज ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन दिया था वो इंफॉर्मेशन थोड़ा जो डेटा दिया है, ओके, वो थोड़ा अलग स्टाइल में दिया है. नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट को शॉर्टकट में ग्रॉस प्रॉफिट तक हाउ डू यू सॉल्व? देखो, पहले सेल्स आता है. ओके, अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तो वो नेट सेल्स है, तो वो नेट सेल्स है. कीप इन माइंड. तो इन दिस क्वेश्चन देयर वाज नो सेल्स रिटर्न. ओके, इसमें से ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है. सो प्लीज लुक at this side. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करे तो क्या आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. तो दिस इज अ वेरी मिनिएचर, छोटा स्टाइल ऑफ इनकम स्टेटमेंट. सर आपने ये नॉर्मली क्यों नहीं बनाया? क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, सच बोले तो COGS के लिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस का दिया क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दिया है ना. तो कोई लंबा रामायण बनाने की जरूरत नहीं है ना. होल्ड ऑन, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है? यू सी, सेल्स इज द ओनली आइटम गिवन टू यू. सेल्स 5 लाख है. ये क्या है? ये नेट सेल्स है. किसने कहा? क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही नेट सेल्स होगा. तो देखो, डिनोमिनेटर तो अवेलेबल है, न्यूमरेटर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ढूंढने का? उन्होंने कुछ हिंट दिया है. 25% दिस ग्रॉस प्रॉफिट is 25% on cost. Cost मतलब ऊपर देखो ना, COGS, cost of goods sold. Cost. Do I know the cost? I don't know. But if I get the cost,
होल्ड ऑन, इफ आई फाइंड, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा टारगेट है, बट क्या करे, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं बोला, कहा है इट इज मेंशन 25% on cost, but I don't know the cost. In a situation when you don't know something, okay, you can consider that something very important to be what? अरे COGS जो है ना, cost, उसको तू 100 रख। किसने कहा? किसी ने कहा नहीं, गुस्सा मत हो, ओके? तेरे को 100 नहीं पसंद, तू उसको 10 रख, 20 रख, 30 रख, 50 रख, कुछ भी रख। मैंने एक assumption किया है, let the COGS, cost of goods sold, be 100। ओके, चलो 100 रख लिया सर। आगे की कहानी, अगर COGS 100, अगर, तो 25% उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, बराबर। हाँ, तो इसका 25% इज व्हाट? 25। इसके लिए मैंने 100 लिया, क्योंकि अगर मैं आपको पूछो आपने लिया COGS 20, अच्छा उसका 25% ढूंढो, तो डायरेक्टली नहीं बता सकते, ओके? इसके लिए जब 100 लेते हैं, लेट द कॉस्ट बी 100, तो 30% 30 है, 40% 40 है, 25% 25। नाउ व्हाट डू यू हैव टू थिंक, क्या सेल्स कितना होगा? क्योंकि सेल्स ऊपर का नंबर, ऊपर का नंबर यहाँ पे ऊपर का नंबर, -100, लिसन लिसन लिसन, इज 25। मेनी स्टूडेंट्स गलती से, हाँ सर ऊपर 75 लिखो ना, बट देन आपको नहीं लगता 75 गड़बड़ी? 75 माइनस 100, ये -100 है, माइनस कॉस्ट। प्लीज थिंक थिंक थिंक, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी 75। व्हाट इज इट? 125। 125 माइनस 100 इज 25। ये क्या है? ये तो हमने बस सोचा है। क्या सोचा है? दैट अगर सेल्स 125 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25। व्हाट डू यू डू? देखो ये डायरेक्टली काम नहीं आएगा, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, बट रियलिटी इसके बगल में है। दैट मीन्स इन रियल द सेल्स इज 5 लाख, बट इन दिमाग सोचा, अजम्पशन, इट इज 125। सो अगर कॉस्ट 100 है तो फिर इन रियल कॉस्ट कितना होगा? व्हाट इज दैट? अरे हम लोगों को ना COGS ढूंढना है, जिसके लिए हमको क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सॉल्विंग, बिकॉज डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ओके? जैसा देश वैसा भेस, कहते हैं ना, हिंदी में मुहावरा है, तो उसी तरह था। द प्रीवियस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज वर सॉल्व्ड in a little bit of a different manner. This one is being solved in a different manner because the information has changed, okay? All of this will be extremely useful for all the different years of your college life. जब आप ऊंचा 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 जाओगे तो याद करोगे कि हाँ, स्टीवनसन ने ऐसा ऐसा कुछ डेफिनेटली बताया था। When you do the cross multiplication, 5 lakh multiply by 100 divide by 125. I repeat, 5 lakh multiply by 100 डिवाइड बाई 125, यू विल गेट COGS। वो कितना है? 4 लाख। ओके, मतलब वो मेहनत कर लो, यहाँ पे तो चुटकी बजा के आ गया, एक क्लिक पे आ गया, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर 5 लाख माइनस 4 लाख इज व्हाट? अरे आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का इन अ डिफरेंट स्टाइल, आ गया। दैट्स इट। दो चीजें हमारे पास है, वी हैव द ग्रॉस प्रॉफिट and we have the sales which is net sales, क्योंकि sales return तो क्वेश्चन में कहाँ पे है नहीं और हम नहीं पैदा कर सकते उसको, तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ऑलवेज रिमेंबर whenever there is a percentage given, 20% on this, 30% on this, तो वो जो on होता है ना, आपको नहीं पता, 100 रखो, 100, और उसका 20-30 करके आपको कुछ ना कुछ एक इक्वेशन आ जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, एंड उस हिसाब से कहानी आगे जा सकती है। यहाँ पे हमारी कहानी को आगे लिखे जाते हैं, 1 lakh upon 5 lakh into 100, and whenever you do your multiplication, your division, your cancellation, you will get the answer of this one, which is 20%. So हमेशा की तरह 32 नहीं रहेगा, it will depend upon whatever is asked from you. So here it is 20%. So today's concentration was on gross profit ratio. In two different styles we have calculated it. My next time's concentration will be on
net profit ratio. Okay, so little by little, not very lengthy lectures, I will be covering up the content of ratio analysis. Some ratios are a little bit simpler, some ratios do require a little bit explanation. अगर वो ना दे तो digestion करने में थोड़ा problem हो सकता है. I hope the explanation of gross profit ratio is understood by you. If it has been understood by you, please lecture को explanation के लिए like ज़रूर कर लेना, and do spread the information about these lectures on this particular YouTube channel via, okay, you can always, there is a share option but under the lecture video, always when it is playing वो आप share कर सकते हो आपके friend circles में, college groups में, so that other students are also aware about this particular channel. They can subscribe and they are also notified about lectures that may be useful to them. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर कोई doubts रहेंगे about this particular explanation, आप वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली नीचे लिख दीजिए. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. दिस इज स्टीवन, सो दिस इज अ गुड बाय फ्रॉम मी. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. जल्दी मिलेगी. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.